Hello all, this is Vikram Verma from New St. Stephen Public School Unit 3rd, and today we are going to finish the chapter of class 8, the Indian Constitution. So students, in the previous video for class 8 SST Political Science chapter 1, the Indian Constitution, in which we have already discussed about the introduction of the chapter, and we have also discussed some facts about the Indian Constitution, and we have also discussed why does a country need a constitution. So all these things we have discussed in the previous video. A few more things we have already discussed. For example, a situation in Nepal, example of misuse of power, and the example of majority. We have also started the key feature of Indian Constitution, and we have discussed first feature of Indian Constitution. The topic that we are going to cover in this video are the parliamentary form of government, separation of power, fundamental rights, and secularism. These all are the feature of the constitution. So a topic is also remaining, the fundamental rights. So the right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion and educational rights, and the last one, right to constitutional remedies. So these are all the basic fundamental rights, 5 fundamental rights that we are also going to cover in this chapter. So let's just start now the second feature of Indian Constitution. Uh, Parliamentary form of government, second key feature of Indian Constitution. The different tiers of government that you just read about consist of representative who are elected by the people. Constitution of India guarantee universal adult suffrage for all citizens. When they are making the constitution, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage, and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class, and gender heredities. This means that the people of India have a direct role in electing their representative. Also, every citizen of the country, irrespective of his and her social background, can also contest in elections. These representatives are accountable to the people. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसा पता है आपको कि हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसमें 3 टियर सिस्टम है ना, जो कि कंसिस्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सिटीज़ में होता है, विलेजेस में ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो चूज़ किया जाता है बाय पार्टी और ग्रुप ऑफ पार्टी, है ना, विच गेट मोर देन 50% सीट इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन, दैट इज़ द लोकसभा। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चूज़ की जाती है किसके द्वारा, पार्टी के द्वारा या ग्रुप ऑफ पार्टी के द्वारा, जिसको 50% से ज़्यादा सीटें मिलती हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, ठीक है, जो उसको हम लोकसभा इलेक्शंस कहते हैं। दूसरा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चूज़ की जाती है पार्टी द्वारा या ग्रुप ऑफ पार्टीज़ द्वारा, है ना, विच गेट मोर देन 50% सीट इन द असेंबली इलेक्शंस ऑफ स्टेट, जिसको हम विधानसभा इलेक्शन भी कहते हैं। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ग्राम पंचायत ये थोड़े से डिफरेंट हैं। यहाँ पर इलेक्शन जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। यहाँ पर जो गवर्नमेंट पार्टी है उसके लिए इलेक्शन नहीं होते हैं, बल्कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए और ग्राम पंचायत के लिए होते हैं, जिनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जैसे म्यूनसिपैलिटी में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल काउंसिल है और नगर पंचायत है। दूसरी तरफ जो पंचायत सिस्टम है उसमें डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, इंटरमीडिएट पंचायत है और विलेज पंचायत है। तो इस टाइप से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को दिखाता है, ठीक है। इसके अलावा भी और कुछ फीचर हैं, जैसे कि इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बताया गया है, जो आप लोगों को पता ही है कि एवरी पर्सन हु हैव द राइट, हु हैव द एज ऑफ 18 और मोर देन 18 हैव द राइट टू वोट, ठीक है। सो
सो द अकॉर्डिंग टू द टैक्स, ठीक है, हम बात जब वे संविधान बना रहे थे, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान बना रही थी, तो संविधान सभा के सदस्यों को महसूस किया कि स्वतंत्र संग्राम में जनता का जो सहभाग है वो बहुत ज़्यादा है ना, तो इसीलिए उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी बनाया, है ना, और ये लोकतांत्रिक मानसिकता को प्रोत्साहन करने के लिए, ठीक है, जाति वर्ग लिंग, है ना, इस प्रकार के चीज़ों को रोकने के लिए, इनको तोड़ने के लिए मदद करेगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि भारत के लोगों की अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने में सक्षम भूमिका रहेगी, ठीक है। साथ ही देश का प्रत्येक नागरिक उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि के बावजूद चुनाव में भी चुनाव लड़ सकता है। यह प्रतिनिधि लोगों के प्रति जवाबदाही रहेगा, है ना। इट इज़ आंसरेबल फॉर द पीपल, है ना, अकाउंटेबल फॉर द पीपल। यहाँ पे लिखा था लास्ट लाइन में, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल। तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि, ठीक है ना। तो ये जो प्रतिनिधि हैं, है ना, वो जवाब दे रहेंगे लोगों के लिए कि उन्होंने अपना जो डिसीजन मेकिंग किया है, कौन सा डिसीजन मेकिंग क्यों किया है और उसके क्या परिणाम हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड फीचर। Now let us talk about the third feature, that is the separation of power. According to the Constitution, there are three organs of the government. These are the legislative, executive, and judiciary. The legislative refers to our elected representative. The executive is a smaller group of people who are responsible in implementing laws and running the government. Third one is the judiciary, of which you will read more in unit 3 of this book, refers to the system of court in this country. In order to prevent the misuse of power by any one branch of the government, the constitution say that each of these organs should be exercise different power. Through this, each organ act as a check on their other organs of government, and this ensure the balance of power between all थ्री। सो सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में आप लोग पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो संविधान के अनुसार, है ना, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो 3 ऑर्गन में डिवाइडेड है। पहली जो ऑर्गन है, मतलब जो पहला पार्ट है गवर्नमेंट का, वो लेजिस्लेटिव कहलाता है। दूसरा जो पार्ट है वो एग्जीक्यूटिव कहलाता है, और जो थर्ड पार्ट है उसको हम जुडिशरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव, तो जो लेजिस्लेटिव होते हैं वो वह लोग होते हैं जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं ना। ये जो लेजिस्लेटिव है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। दूसरा था हमारा एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। तो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो छोटा ग्रुप होता है ना, उनको कार्यकारी भी कहा जाता है हिंदी में। तो उन लोगों का एक छोटा समूह होता है जो कानून लागू करने और सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। थर्ड था तो हमारा जुडिशरी, जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं, ठीक है। तो जो न्यायपालिका यानी जुडिशरी है, उसमें आप लोग उसके बारे में, है ना, जो हमारी बुक में जो यूनिट 3 है ना, जिसमें कोर्ट के बारे में बताया गया है इस कंट्री के, उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे, सरकार की जिस एक शाखा द्वारा सत्ता का दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान कहते हैं, है ना, इसके एक अंग में प्रत्येक भिन्न शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। यही है यहाँ पर जो उन्होंने बताया था कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो उसने पावर को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर रखा है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। मतलब उसके 3 अंग बना रखे हैं जिसमें अलग अलग पावर को डिवाइड कर रखा है, ताकि जो हमारी पावर है वो क्या ना हो, मिसयूज़ ना हो, ठीक है। और इससे हम इसके माध्यम से प्रत्येक अंग सरकार के अन्य अंगों पर जांच के रूप में कार्य करता है ना। तो इसी से ये होता है कि हमारा जो एक ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट का, वो दूसरे ऑर्गन को चेक करता है, ठीक है। और इससे तीनों के बीच शक्ति का संतुलन सुनिश्चित होता है ना। ये बैलेंस रखता है किसकी, पावर की। किसी एक के पास ज़्यादा पावर नहीं हो सकती, है ना। और ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे की पावर क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ठीक है। सो आवर नेक्स्ट key feature of the Indian Constitution is the fundamental right. The section of the fundamental right have often been referred to as the conscience of the Indian Constitution. Colonial rule
had created a sustained suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. Fundamental rights therefore protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. The Constitution thus guarantee the rights of individual against the state as well as against the individual. So let's start. So fundamental rights, the section of fundamental rights has often refers to as the conscience of the constitution. मतलब यह है फंडामेंटल राइट यानी कि बुनियादी अधिकार. तो जो बुनियादी अधिकार है, जो मौलिक अधिकारों पर जो धारा है ना, अक्सर भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है. ठीक है. सो आगे तो colonial rule had created a certain suspicious the state in the mind of the nationalists that they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. तो जो हमारा शासन था, मतलब कौन सा शासन था, क्या कहते हैं, जो ब्रिटिशर्स का जो शासन था, इसको हम कॉलोनियल रूल कहते हैं. तो जो कॉलोनियल रूल था, है ना, कॉलोनियल शासन ने संविधानियों राष्ट्रवादियों नेशनलिस्ट, है ना, राष्ट्रवादियों के मन में राज्य का एक निश्चित संदेह पैदा कर दिया था, है ना, और वह ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि लिखित अधिकारों का एक सेट स्वतंत्र भारत में राज्य शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ रक्षा करेगा. ठीक है. मतलब ये है कि वो जो कॉलोनियल रूल में जो ब्रिटिशर्स थे वो ये चाहते थे कि जो नेशनलिस्ट अब जो राष्ट्रवादी हैं, है ना, वो एक ऐसा रूल्स और रेगुलेशन बनाएं जो इंडिपेंडेंट इंडिया में भी वर्क करे और उस समय कोई भी जो रिटन सेट्स ऑफ रूल हैं, है ना, उसकी मदद वो ये इंश्योर करे कि वो कोई पावर का कोई गलत यूज़ ना करे, यानी कि पावर का कोई दुरुपयोग ना करे. इसीलिए मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष अभ्यास से बचाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ये था ना कि fundamental rights therefore protect citizen against the arbitrary and the absolute exercise of the state. तो यहाँ पर जो arbitrary था, इसका मतलब था मनमाना मतलब सेल्फ विल. तो इसीलिए जो हमारे मौलिक अधिकार है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट है, वो सिटीजन को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि जो पावर है स्टेट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, है ना, वो उसका मनमाना प्रयोग ना करे. ठीक है ना. और आगे इस प्रकार संविधान राज्य के साथ साथ अन्य व्यक्तियों व्यक्तियों के अधिकारों की गारंटी देता है. सो लेट्स कंटिन्यू दिस ऑन नेक्स्ट स्लाइड. Moreover, the various minority community also express the need for the constitution to include right that would protect their group. The constitution therefore also guarantee the right of minority against the majority. As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, their objective is twofold. The first objective is that every citizen must be in a position to claim those rights. Secondly, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make the laws. इसके अलावा विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों ने भी अधिकारों को शामिल करने के लिए संविधान की आवश्यकता व्यक्त की जो उनके समूहों की रक्षा करेंगे. इसीलिए संविधान बहुमत के खिलाफ अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारंटी भी देता है. जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने इन मौलिक अधिकारों के बारे में कहा है, उनकी वस्तु दो गुना है. मतलब कि ये यहाँ पर ये मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो दो फोल्ड में है. उसके जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसके दो ऑब्जेक्टिव हैं ना. पहला जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में बताता हूँ मैं. पहला उद्देश्य यह है कि
प्रत्येक नागरिक को उन अधिकारों का दावा करने की स्थिति में होना चाहिए। और दूसरी बात, ये अधिकार हर उस अधिकार के लिए बाध्यकारी होने चाहिए जिन्हें कानून बनाने की शक्ति मिलती है। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया कि हमारा जो मौलिक अधिकार हैं, है ना, तो उन अधिकारों के दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हर एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजीशन ऑफ क्लेम दिस राइट। तो मतलब हर सिटीजन का मतलब कि प्रत्येक नागरिक को उन अधिकारों पर दावा करने की स्थिति में होना चाहिए, है ना, कि हम उन क्लेम्स, उन राइट्स पर क्लेम कर सकें, उन अधिकारों पर दावा कर सकें। दूसरा ये था कि ये अधिकार हर उस अधिकार के लिए बाध्यकारी होने चाहिए जिन्हें कानून बनाने की शक्ति मिलती है। ठीक है, तो ये था जो हमने यहाँ पर सेकंड टॉपिक में कंटिन्यू करा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हमारा देखते हैं। सो आर fifth key feature of the Indian Constitution is secularism. A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. You now understand the ways in which a country's history often determine the kind of constitution that a country adopts for itself. The Constitution plays a crucial role in laying out the ideas that we would like all citizens of our country to adhere to, including the representative that we elect to rule us. Just like in the game of football, a change of consecutive rules will affect the game. And Indian Constitution have been amended over the year to reflect new concern of the polity. Often, a major change in the constitution means a change in the fundamental nature of the country. We saw this in the case of Nepal, how it need to adopt a new constitution after it has been recently become a democratic society. So, next feature of the Indian Constitution is the secularism. तो सेकुलर स्टेट एक वो स्टेट होता है ना, जो किसी एक ऑफिशियली प्रमोट नहीं करता है किसी एक रिलीजन को, कि जो उनके स्टेट का रिलीजन माना जाए। ठीक है, तो राज्य वह राज्य है ना, जिसमें राज्य आधिकारिक तौर पर किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में प्रचलित नहीं करता, है ना। तो सेकुलरिज्म, है ना, वो स्थिति है जहाँ पर कोई भी मतलब स्टेट में आधिकारिक तौर का मतलब है यहाँ पर ऑफिशियल तरीके से, है ना, ऑफिशियल तरीके से प्रमोट नहीं करता किसी भी एक धर्म को, है ना, प्रमोट नहीं करता किसी एक धर्म को राज्य धर्म के तौर पर। प्रमोट का मतलब होता है प्रचलित नहीं करता। सो यू नाउ अंडरस्टैंड, तो अब आप वो समझेंगे वो तरीके जिनसे एक कंट्री का जो इतिहास है ना, उससे ये पता चलता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन को किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपनाना चाहिए। ठीक है ना। अब आप उन तरीक़ों को समझते हैं जिससे किसी देश का इतिहास अक्सर उस तरह के संविधान को निर्धारित करता है जिससे कोई देश अपने लिए अपनाता है। ठीक है, संविधान उन आदेशों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम देश के सभी नागरिकों का पालन करना चाहते हैं, है ना। यहाँ पर हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा था। ठीक है, मतलब कि उसका मेन रोल था, है ना, वही बता रहा था कि किसकी क्या लिमिट है, किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए। उसने पार्लियामेंट्री फॉर्म बनाया, गवर्नमेंट का रूल्स और रेगुलेशन लिए, सभी की पावर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिवाइड हुई। ठीक है ना। तो संविधान उन आदर्शों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, जिन्हें हम देश के सभी नागरिक पालन करना चाहते हैं, है ना, जिससे वे प्रतिनिधि भी शामिल हैं जो हमें शासन करने के लिए चुनते हैं। अब सुनिए ध्यान से, दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। संविधान उन आदर्श को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। कौन से आदर्श? जिन आदर्शों पर हमारा संविधान बना है ना, जिन्हें हमारे देश के सभी नागरिक का पालन करना चाहते हैं। मतलब कि ये वो क्या कहते हैं भूमिका, ये बहुत सारी आदर्श हैं जिन्हें
हम देश के सभी नागरिकों का पालन करना चाहते हैं, है ना, जिसमें वे प्रतिनिधि भी शामिल हैं जो हमें शासन करने के लिए जिससे हम शासन करने के लिए चुनते हैं, है ना। तो वो प्रतिनिधि, वो रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, है ना, जिसे हम चुनते हैं शासन करने के लिए। यहाँ पर इसका ये मतलब हुआ कि वो रिप्रेजेंटेटिव्स जिसको चूज़ किया जाता है डेमोक्रेसी में, है ना, उनको भी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना है, ये उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ये आदर्श हैं, ये नियम है जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिलते हैं और ये सभी नागरिक फॉलो करते हैं। नागरिक मतलब जो सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के, वो फॉलो करते हैं और वो यही आशा हमारे रिप्रेजेंटेटिव से भी रखते हैं कि दे ऑल्सो फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर गिविंग अस द वे टू बिकम अ गुड कंट्री, है ना, एंड टू फुलफिल all the ideals that we want to be fulfilled। अब यहाँ पर आप एक फुटबॉल मैच की क्या कहते हैं दृश्य को आप अपने सामने देख सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए आपके सामने एक फुटबॉल का गेम चल रहा है और चलते हुए गेम के फुटबॉल गेम में कुछ रूल को अचानक से चेंज कर दिए जाएँ तो क्या होगा, ठीक है। तो वो गेम को प्रभावित करेंगे उसी समय। इसी प्रकार से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो हमारा क्या कहते हैं भारतीय संविधान है ना, उसमें कई वर्षों से संशोधन किया गया है। मतलब संशोधन का मतलब होता है अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस। तो भारतीय संविधान में कई वर्षों से संशोधन किया गया है ताकि राजनीति की नई चिंताओं को प्रतिबिंबित किया जा सके। तो मतलब जो राजनीति का मतलब होता है पॉलिटिक्स, है ना। तो जो पॉलिटिक्स के न्यू कंसर्न है, कंसर्न का मतलब जो नई चिंताएं है ना, उनको उसमें दिखाया जा सके, बताया जा सके और उसको और ज़्यादा अपडेटेड किया जा सके, है ना। आगे अक्सर संविधान में एक बड़ा बदलाव का मतलब है देश की मौलिक प्रकृति में बदलाव। अगर आप खुद सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फंडामेंटल मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, उसका पूरा नेचर ही चेंज हो जाएगा, है ना। सो जैसा कि हमने इसे नेपाल के मामले में देखा और हाल ही में एक लोकतांत्रिक समाज बनाने के बाद इसे एक नए संविधान को अपनाने की आवश्यकता है ना। जैसे कि इसमें नेपाल वाला एग्जाम्पल हमने देखा था कि नेपाल में, ठीक है, उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, है ना। और पहले कॉन्स्टिट्यूशन था लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया, उसकी फंडामेंटल वैल्यूज़ चेंज की गई, है ना। जो पावर थे किसके पास, राजशाही के पास, यानी कि किंग के पास, वो सारे पावर वहाँ से हटाए गए और इस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन था, है ना, उसका जो क्या कहते हैं फंडामेंटल नेचर था वो भी वहाँ पर चेंज हो गया। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। पहला जो है वो है राइट टू इक्वलिटी। ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ। दिस मीन्स दैट all persons should be equally protected by the law of our country. It also states that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste or sex. Every person has access to all public places including the playground, hostels, shops, etc. The state cannot discriminate against anyone in matters of employment, but there are exceptions to this that you will read it about later in this book. The practice of untouchability has ऑल्सो बीन एबॉलिश, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की, यानी कि समानता का अधिकार, है ना। सभी जो लोग हैं, मतलब कि सभी जो हमारे नागरिक हैं हमारे देश के, है ना, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिसमें शामिल हैं, है ना, वो कानून के आगे सारे बराबर हैं। मतलब कानून सभी के लिए सेम है ना, समान है ना। इसका ये भी मतलब है कि हमारा जो कानून है वो हर व्यक्ति को बराबर प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट मतलब उसकी रक्षा करेगा, ठीक है। इट ऑल्सो स्टेट दैट, और इसमें ये भी बताया गया है कि किसी सिटीज़न पे हम भेदभाव नहीं कर सकते, किसी सिटीज़न से हम भेदभाव नहीं कर सकते उसके रिलीजन, कास्ट और सेक्स को लेकर। मतलब रिलीजन मतलब धर्म को लेकर या कास्ट को लेकर या उसके जेंडर को लेकर कि वो मेल है या फीमेल है। तो इन बातों को लेकर इन बातों की वजह से हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, है ना। हर पर्सन, है ना, उसको हर पब्लिक प्लेस पे जाने का अधिकार है। जैसे कि जो प्लेग्राउंड है, जो मैदान आप देखते हैं, जो क्या कहते हैं पब्लिक की संपत्ति है ना। जो रोड्स, जो शॉप्स, जो हॉस्टल्स, है ना, वो देखते हैं, है ना। तो वहाँ पर हर व्यक्ति जा सकता है
है ना। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी या हमारा जो राज्य है ना, वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता, है ना। एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार, रोज़गार देने में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शंस है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसी बुक में, है ना। जो अनटचेबिलिटी है उसको भी पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो राइट टू इक्वलिटी हमें इस बारे में भी बताता है, ठीक है। तो जो अगला राइट है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उसको नाम है राइट टू फ्रीडम, है ना। तो पहले मैं आप लोगों को टोटल बता देता हूँ कि कितने राइट्स हैं। तो हमारे कुल टोटल, जैसे कि पहला था राइट टू इक्वलिटी, है ना, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये थर्ड राइट था। फोर्थ राइट है राइट टू प्रोटेक्ट ऑफ रिलीजन, है ना। फिफ्थ था हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और सिक्स्थ राइट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इस प्रकार से हमारे ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो सेकंड राइट जो है हमारा वो क्या था, राइट टू फ्रीडम। उससे पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी के बारे में। तो मैं शॉर्ट में इसके पॉइंट बता दे रहा हूँ क्या कहते हैं। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान रूप से संरक्षित किया जाएगा, मतलब प्रोटेक्ट किया जाएगा, है ना। इससे यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचना अनिवार्य है, मतलब कि आप सभी व्यक्ति क्या कहते हैं सार्वजनिक यानी कि जो पब्लिक प्लेसेस होती है, सार्वजनिक स्थल तक पहुंच सकते हैं, पहुंच हो सकती है ना। जिसमें ऐसे कि खेल का मैदान, होटल्स आदि शामिल है, दुकानें आदि शामिल हैं। राज्य रोजगार के मामले में भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जो हम पुस्तक में आगे चल के पढ़ेंगे। छूत अछूत की प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो राइट देखते हैं। तो अगला राइट जो है हमारा वो है राइट टू फ्रीडम। दिस इंक्लूड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म association, right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practice any प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, है ना। तो इसको हम कहते हैं कि आज़ादी का अधिकार, मतलब राइट टू फ्रीडम। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम आती हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि हम कहीं कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई भी बात। हम जैसे कि आज सोशल मीडिया है, फेसबुक है ना, तो हम अपने विचार सोशल प्लेटफॉर्म पर क्या कहते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हमारे पास अधिकार है, ठीक है। हम एसोसिएशन बना सकते हैं, हम अपनी कंट्री के किसी भी पार्ट में एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से में जाके भी रह सकते हैं, है ना। हम किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का पेशा यानी कि प्रोफेशन को भी हम चूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ राइट्स हैं, फ्रीडम बेसिक राइट्स हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, ठीक है। शॉर्ट में बताता हूँ एक बार इसके बारे में। जो ये अधिकार थे, है ना, तो इन अधिकारों में क्या शामिल है। अधिकार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति का क्या मतलब होता है, एक्सप्रेस, है ना। तो एक्सप्रेस मतलब स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो स्पीच और एक्सप्रेशन का अधिकार है ना। संघों का गठन करने का अधिकार, मतलब कि जो हमारे एसोसिएशंस होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, उसको हम संघ कहते हैं, है ना। तो उनको हम क्या कह सकते हैं, गठन कर सकते हैं उनका, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्र रूप से चलने और देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार, है ना। तो हम देश के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं। किसी भी पेशे, व्यवसाय या व्यवसाय का अभ्यास करने का भी अधिकार शामिल है, तो इसमें हम किसी भी व्यवसाय को भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो राइट है वो है राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ऑफ ईयर, है ना। तो यहाँ पर अगला अधिकार जो था हमारा राइट अगेंस्ट शोषण, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है, यानी कि मानव तस्करी, है ना, जिसमें ह्यूमन बींग्स को, मतलब कि जिसमें कि बच्चों को, आदमियों को, औरतों को बेच दिया जाता है ना, क्या कहते हैं, स्लेवरी के लिए, है ना।
फोर्स लेबर, है ना, बच्चों से ज़बरदस्ती काम कराया जाता है ना। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रोकता है, मतलब कि 14 साल से कम के, जिनकी इन बच्चों की उम्र 14 साल से कम रहे, उनको रोज़गार देने पर भी प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, चलिए अब हम अगले अधिकार के बारे में बात करते हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम of religion. Religious freedom is provided to all the citizens. Every person have the right to practice, profess and propagate the religion of their choice. है ना, तो जो हमारा चौथा अधिकार है वो है right to choose their religion. So according to this right, that is a right to follow the religion. So धार्मिक स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का अभ्यास करने, प्रचार करने का अधिकार है। ठीक है, अगला है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। सो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मीन्स सांस्कृतिक एवं और शैक्षिक अधिकार, है ना, शिक्षा के यानी कि एजुकेशन के अधिकार। संविधान कहता है कि सभी अल्पसंख्यक धार्मिक या भाषाई अपने संस्कृति को संरक्षित करने और विकसित करने के लिए अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कैन सेट अप own educational institution in order to preserve and develop their own culture. ठीक है, तो अगला जो राइट है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, दिस अलाउज सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। ये जो राइट है ये अधिकार देता है हमारे सिटीजन्स को, यानी कि नागरिकों को, यदि वे मानते हैं कि उनके किसी भी मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है। राज्य मतलब स्टेट वायलेटेड मतलब उल्लंघन। तो राज्य द्वारा अगर उनके किसी भी मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया गया है ना, तो वो कोर्ट जा सकते हैं ना, नागरिकों को अदालत में, है ना, स्थानांतरण करने की अनुमति देता है ना, मूव टू द कोर्ट। तो ये थे हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स।